अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर ऑफ केमिस्ट्री. ठीक है, ICSE 2026 एग्जामिनेशन. ओके, नाउ सेक्शन A. Question 1 consists of MCQs, that is multiple choice question from which you have to select the correct option. Okay, you need not to write the questions, you have to write the correct answers only. ठीक, आप करेक्ट ऑप्शन के साथ आंसर भी लिखोगे. ओके बेटा, you have to mention the answer along with the correct option. ठीक. Now, which of the following will dissociate in aqueous solution to give a positive ion other than hydronium ion or a negative ion other than hydroxyl ion? ठीक है. So बेटा, हाइड्रोनियम आयन अगर एसिड होगा तो डेट विल ऑब्वियसली गिव H+ आयन, और H+ आयन वाटर के साथ, वाटर के ऑक्सीजन एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के हाइड्रोनियम आयन फॉर्म कर लेगा. सो एलिमिनेशन टेक्निक के थ्रू आप कितने ऑप्शंस एलिमिनेट हो सकते हैं? पहले ये देखो, KOH इज द रॉन्ग वन. वाई? बिकॉज इट विल प्रोड्यूस हाइड्रोक्सिल आयन. इट विल डिसोसिएट इनटू K+ and OH-. Dilute HCl will dissociate into Cl- and H+ combine with water and form hydronium ion. CH3COH again form H+ ion, dissociate into H+ ion and acetate ion, and that H+ combining with water produces hydronium ion. So A, B and D option are incorrect. The only correct option that remains is NaCl. NaCl on dissociation produces cation other than hydronium ion and anion other than hydroxyl ion, that is Na+ and Cl-. It will be dissociated into Na+ and Cl-. ठीक है, so this option is correct. C option is correct. Now a compound P is heated in a test tube with sodium hydroxide solution. A red litmus paper held at the mouth of the test tube turns blue. Which of the following could be compound P? ठीक है, a compound P is heated in a test tube with sodium hydroxide solution. सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन के साथ कंपाउंड P को हीट कर रहे हैं. तो अब देखो, जिंक कंपाउंड P क्या हो सकता है बेटा? जिंक सल्फेट को हीट करेंगे किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ. तो आपको क्या मिल जाएगा? जिंक हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम सल्फेट. कॉपर सल्फेट को हीट करेंगे तो यू विल गेट कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम सल्फेट. ठीक है, कहीं भी गैसेज नहीं मिल रही हैं. ये क्या कह रहे हैं? अ रेड लिटमस पेपर हेल्ड एट द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न्स ब्लू. ठीक है, तो कोई गैस होना चाहिए जो क्या कर रही है? टेस्ट लिटमस पेपर को ब्लू कर रही है. कोई भी बेसिक गैस होना चाहिए. तो फेरस सल्फेट को हीट करेंगे, अगेन यू विल गेट फेरस हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम सल्फेट. अमोनियम सल्फेट को हीट करने पे हमें क्या मिलेगा? NH4SO4. NH4 होल ट्वाइस SO4 इज अमोनियम सल्फेट प्लस NaOH. ठीक है, 2 NaOH. यू विल गेट Na2SO4 that is sodium sulfate plus water plus ammonia. So ammonia gas is being released here, and ammonia gas being basic turn this. ठीक है, red litmus paper blue. Okay, so the correct option is D, that is ammonium sulfate. Now the third, assertion and reason. Assertion is aqueous solution of potassium chloride can conduct electricity. Yes, potassium chloride in aqueous or molten state can conduct electricity. Okay, potassium chloride is an electrolyte. It will be dissociated into K+ and Cl- ions. Now reason is the conduction of electric current is due to the presence of free ions. Yes, conduction of electric current is due to the presence of free ions. Okay, so both A and R are true, and R is the correct explanation of A. That means C will be the correct answer. Okay, identify the ion that contain one lone pair of electrons. One lone pair of electrons. In case of hydroxyl ion, oxygen has two lone pair of electrons on it. ठीक है, in case of hydronium ion, one coordinate bond is being formed between oxygen and H+ ion, oxygen of water and H+ ion. And in case of water, there are two lone pair of electrons on oxygen atom. और इसने क्या करा? H+ के साथ मिलके क्या बना लिया है बेटा? हाइड्रोनियम आयन. इट हैज फॉर्म्ड. हेंस दिस H3O+ में बेटा ओनली वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अवेलेबल ऑन ऑक्सीजन एटम. ठीक है, अब आप अमोनियम आयन का भी केस देख लो. हाइड्रोजन आयन पे तो कोई लोन पेयर है ही नहीं, बिकॉज हाइड्रोजन कंटेन ओनली वन इलेक्ट्रॉन, ऑन डेट टू इट हैज़ लॉस्ट इन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ H+ आयन. ठीक है, अमोनियम आयन नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर था, और वो लोन पेयर इज इन्वॉल्व इन कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग बिटवीन द अमोनिया एंड हाइड्रोजन आयन. ठीक है, नाउ फोर रिएक्शंस आर शोन इन द डायग्राम बिलो. सबसे पहले क्या हो रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जा रहा है. ठीक है, नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ जिंक विद डाइल्यूट HCl, burning of ethanol, and magnesium carbonate and dilute sulfuric acid. Reaction between magnesium carbonate and dilute sulfuric acid. आपको बताना है which reactions will produce water. Calcium carbonate on burning produces calcium oxide and carbon dioxide, so water is not produced here. ठीक है, zinc and dilute HCl on reacting together form zinc chloride and H2 gas. ठीक है, again no water is being produced here. Ethanol on burning or combustion in presence of oxygen form carbon dioxide and water, so water is being produced in the third reaction. ठीक है, and in this case magnesium carbonate and dilute sulfuric acid. Magnesium carbonate react with dilute sulfuric acid to form क्या बनाएगी? मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. ओके,
So here water is being produced in this reaction as well. Water is being produced in this reaction as well. That means option C is correct. Third and fourth reactions, during the third and fourth reactions, water is being produced. Okay, this. Next, 6.1, when compound X reacts with dilute sulfuric acid, it releases a gas that turns acidified potassium dichromate solution from orange to green. Which of the following could be compound X? Okay, तो यहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट में जब क्रोमियम की बेटा वैलेंसी कितनी होती है +6, देन इट इज ऑरेंज इन कलर. ठीक है, जब क्रोमियम की वैलेंसी रिड्यूस होकर क्या हो जाती है +3, देन दैट कंपाउंड इज ग्रीन इन कलर. दैट क्रोमियम कंपाउंड इज ग्रीन इन कलर. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है. तो विच एवर इज द रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब जो भी कोई रिड्यूसिंग एजेंट प्रोड्यूस कर रहा होगा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, वही करेगा पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन को ऑरेंज से ग्रीन कलर. ठीक है, लेड नाइट्रेट ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूसेस लेड सल्फेट एंड नाइट्रिक एसिड. ठीक है, कॉपर कार्बोनेट ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूसेस कॉपर सल्फेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट अ रिड्यूसिंग एजेंट. सोडियम क्लोराइड ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म सोडियम सल्फेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ठीक है, अगेन they are not good enough reducing agents. ठीक है, on potassium sulfite is K2SO3. K2SO3 on reaction with dilute sulfuric acid, that is H2SO4, produces K2SO4, that is potassium sulfate plus sulfur dioxide plus water. ठीक है, now this sulfur dioxide gas is a very strong reducing agent, and this convert Cr plus 6 to Cr plus 3, that is रिड्यूस कर रहा है किसको, Cr plus 6 को Cr plus 3, क्रोमियम plus 3 स्टेट. ठीक है, hence this is reducing the potassium compound, chromium compound, and hence this is a strong reducing agent, and this option is correct. Okay, Cr plus 6 से क्या बना जा रहा है, Cr plus 3, and Cr plus 6 has orange color. ठीक है, plus 6 compound has orange color and Cr plus 3 compound has green color. Now volume occupied by 2 moles of a gas at STP is standard conditions of temperature and pressure. ठीक है, 1 mole of any gas occupy 22.4 liter, but 2 moles will occupy its double quantity. Okay, that is 44.8 liter. So C will be the correct answer. ठीक है, now identify from the following metal oxide which can react with an acid as well as an alkali. तो acid और as well as an alkali के साथ कौन react करता है, that is amphoteric metal oxide, और amphoteric metal oxide in the options given below is only aluminium oxide. Apart from aluminium oxide, zinc oxide is also amphoteric. Zinc, tin, lead and aluminium. These 4 oxides are amphoteric in nature. Okay. Now the structures of 4 hydrocarbons are shown below. How many isomers of butene are shown in the above structures? Now this is not butene. ठीक है, why? Because this does not contain double bond. तो ये तो eliminate ही हो जाएगा ऑप्शन. Now this one देखो, ये वाला देखो, this one is an isomer of butene. ये isomer है butene का, because it has the same molecular formula as butene. Butene का molecular formula क्या होगा, जनरल molecular formula alkenes के लिए होता है CnH2n, तो butene के लिए हो जाएगा बेटा C4H8. Okay, now this has C4 carbons and 8 hydrogens. So this one is the isomer of butene. ठीक है, C4H8. This is also the isomer of butene. This is normal butene. ठीक है, अब ये देखो बेटा, this structure, is this also the isomer of butene? Yes, this is also the isomer of butene, but this is the same as this structure. ये और ये structure same है, आप देख लो. ठीक है, this one is 2-methyl propene and this one is also 2-methyl propene. ठीक है, so both are same. Both are same compounds, so only 2 isomers are shown above. Okay, 2 isomers of butene are shown above, and B will be the correct answer. Which element among the following has the largest atomic radius among this? Aluminium, sulfur, magnesium and sodium. Aluminium, sulfur, magnesium and sodium all belong to the same period, that is period 3. Okay, all have 3 shells ना, aluminium, sulfur, magnesium as well as sodium. अब इनको अरेंज कर लो ग्रुप वाइज. सबसे पहले सोडियम आएगा, देन मैग्नीशियम, देन aluminium and then sulfur. And you all know that atomic radius decreases as we move across a period, decreases as we move across the period. So which element will have the largest atomic radius? And the sodium is the correct option. ठीक है, why atomic radius decreases as we move? Because number of shells remains same, but number of protons increase कर रहे हैं, atomic number is increasing, hence number of protons is increasing, तो electron pull is increasing on the outermost shell, leading to the contraction of atomic radius. Okay, now for which pH change is there maximum increase in acidity? Okay, अब देखो इनिशियल pH क्या है 1, फाइनल pH 3, तो एसिडिक कैरेक्टर कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है. फाइनल इनिशियल pH is 2, फाइनल pH is 6, अगेन एसिडिक कैरेक्टर is decreasing. Why? Because value of pH is inversely proportional to the acidity. ठीक है,
एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। अब देखिए इनिशियल पीएच और फाइनल पीएच इन दो के केस में ही एसिडिटी इंक्रीज हो रही है। अब आपको बताना है मैक्सिमम इंक्रीज। ए बी ऑप्शन तो वैसे ही क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। अब आपको सी और डी ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। यहाँ पे 2 पॉइंट्स पीएच बढ़ रहा है फ्रॉम 3 to 1, ठीक है। यहाँ पे देखिए फ्रॉम 6 to 2 4 पॉइंट्स पीएच बढ़ रहा है, दैट मीन्स डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। मैक्सिमम इंक्रीज इन एसिडिटी इज इन दिस केस फ्रॉम 6 to 2, ठीक है। Now the equation below shows the reaction between element X and dilute sulfuric acid. Element X is solid, can be any metal, plus dilute sulfuric acid gives XSO4 aqueous plus H2 gas. Which particles are responsible for conducting electricity in dilute sulfuric acid and compound XSO4? ठीक है, that is metal sulfate. Electrons only positive ions, only negative ions, या both positive and negative ions. Both positive as well as negative ions are responsible for the conduction of electricity. ठीक है, यहाँ पे electrolysis से electricity conduct होगी and both positive as well as negative ions of H2SO4 as well as the compound that is XSO4, ठीक है। XSO4 में भी cation as well as anion is present, okay। X2 plus is the cation here and sulfate ion is the anion here, and in case of H2SO4 H plus is the cation and sulfate ion is the anion, ठीक। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, दैट इज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, ठीक है। मिथेनॉल एंड इथेनॉल बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज। व्हाट डज दिस स्टेटमेंट मीन? देयर मॉलिक्यूल्स कंटेन एटम्स ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। नो, कार्बन हाइड्रोजन एज वेल एज ऑक्सीजन एटम इज प्रेजेंट। देयर मॉलिक्यूल्स हैव द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। नो, मिथेनॉल हैज 1 एंड इथेनॉल हैज 2 कार्बन एटम्स। दे हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप। यस, दे हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। And that's why they belong to the same homologous series. Why? Because they have the same functional group but they differ only in CH2 group. Okay? मीथेनॉल में एक CH2 ग्रुप इंक्रीज कर देंगे, इथेनॉल मिल जाएगा, ठीक है। दे हैव द सेम रिलेटिव मॉलिकुलर मास। नो, मॉलिकुलर मास नहीं सेम है क्योंकि मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम नहीं है, मॉलिकुलर मास कैसे सेम हो जाएगा। नाउ द रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम्स ऑक्यूपाइड बाय 22 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 10 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन गैस इज। अब देखो, आप रेशियो निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ मोल्स पता होना चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स, 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइड हाउ मच वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम कितना होता है बेटा, 22.4 लीटर। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स पता होगा तो आपको मोलर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस भी पता चल जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो ही हमें दे देगा वॉल्यूम का रेशियो, ठीक है। तो आप नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो निकाल लो। रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम 22 ग्राम्स, मास गिवन कितना है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का 22 ग्राम्स। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आपको पता है कितना होता है। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मास गिवन अपॉन मॉलिकुलर मास, मास गिवन अपॉन मॉलिकुलर मास। तो आप पहले निकाल लो नंबर ऑफ मोल्स किसके लिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 विल गिव द रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम्स एज वेल, ठीक है। तो आप इसका निकालो 22/44, ओके। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिकुलर मास इज 44 डिवाइडेड बाय 10 ग्राम किसका दिया हुआ है बेटा, 10 ग्राम इज गिवन ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। 10 ग्राम अपॉन हाइड्रोजन गैस का कितना होता है मॉलिकुलर मास, 2 हाइड्रोजन एटम्स आर देयर एंड ईच हाइड्रोजन एटम हैज एटॉमिक मास इक्विवेलेंट टू 1, सो 1 + 1 = 2, ठीक है। So the correct answer is 1:10. C is the correct one. ठीक। Now in the process of electro refining of copper shown in the diagram below, which of the following statement is correct? अब ये देखो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर हो रही है। दिस वन इज द एनोड, दिस वन इज द कैथोड। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन पढ़ा है। एनोड मड इज द इम्प्योरिटी, ठीक है। द एनोड इज मेड ऑफ प्योर कॉपर। एनोड प्योर कॉपर का बना है। नो बेटा, एनोड इज नॉट मेड अप ऑफ प्योर कॉपर क्योंकि कैथोड इज मेड अप ऑफ प्योर कॉपर, ठीक है। डिपोजिशन हैपेंस ओनली एट द कैथोड ना, कैथोड इज मेड ऑफ इम्प्योर कॉपर नहीं भाई, एनोड इम्प्योर कॉपर का है। कॉपर इज डिपॉजिटेड एट द एनोड, नो, copper is deposited at the cathode. Copper ions from the anode move to the cathode and get deposited as pure copper. Yes, copper ions anode से निकल के जा रहे हैं solution में and they are migrating towards the cathode, and by gaining electrons or by reduction, through reduction they are getting deposited at the cathode in pure form, ठीक है। So which option is correct? D option is correct. Now question 2, electroplating steel objects with silver involves a 3-step process, ठीक है। स्टेप 1 इज अ कोटिंग ऑफ कॉपर इज अप्लाइड टू द ऑब्जेक्ट, अ कोटिंग ऑफ निकल इज अप्लाइड टू द ऑब्जेक्ट, एंड स्टेप 3 द कोटिंग ऑफ सिल्वर इज अप्लाइड टू द ऑब्जेक्ट। 3 कोटिंग हो रही हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ कॉपर, देन ऑफ निकल एंड देन ऑफ सिल्वर। अ डायग्राम ऑफ द एपरेटस यूज्ड फॉर स्टेप 1 इज शोन। स्टेप 1 के लिए एपरेटस का डायग्राम इज गिवन, ठीक है। द केमिकल प्रोसेस टेकिंग प्लेस ऑन द सर्फेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज Cu2 + aqueous + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu solid, that is copper is depositing on this article, that is the steel object, ठीक है। what is the observation seen on the surface of the object? क्या ऑब्जर्वेशन आपको दिखेगा? that copper will deposit, कॉपर आयन का रिडक्शन होगा एंड कॉपर सॉलिड कॉपर विल डिपॉजिट ऑन दैट स्टील ऑब्जेक्ट, ठीक है। डिपोजिशन ऑफ कॉपर एट दिस ऑब्जेक्ट और द कैथोड
will takes place, यही ऑब्जर्वेशन हो जाएगा. एक्सप्लेन व्हाई द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर आयंस इन द इलेक्ट्रोलाइट रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट स्टेप 1. व्हाई? बिकॉज वी हैव टेकन एक्टिव कॉपर इलेक्ट्रोड एज द एनोड. एक्टिव कॉपर इलेक्ट्रोड एज द एनोड. सो एक्टिव कॉपर इलेक्ट्रोड क्या कर रहा है? दिस इज गिविंग कॉपर आयंस. ठीक है, ऑक्सीडाइज होकर कॉपर आयंस रिलीज कर रहा है सोल्यूशन में. एंड द कॉपर आयंस that are being reduced and deposited at the cathode are continuously replaced by the copper ions that this anode is producing by oxidation. Okay, now give two changes which would be needed in order to coat nickel onto the object in step 2. तो क्या चेंजेस हमें करना पड़ेगा? पहले तो हमें इलेक्ट्रोलाइट चेंज करना पड़ेगा. कॉपर 2 सल्फेट की जगह हमें कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लेना है? अब निकल सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट वी हैव टू टेक. ओके, और कॉपर एनोड को रिप्लेस करना पड़ेगा विद एक्टिव निकल इलेक्ट्रोड एज द एनोड. ओके, एक्टिव निकल इलेक्ट्रोड एज द एनोड. एंड इलेक्ट्रोलाइट को चेंज करना पड़ेगा. aqueous कॉपर सल्फेट से हमें क्या लेना पड़ेगा? aqueous निकल सल्फेट. ओके, नाउ राइट डाउन द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग स्टेप 3. पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे क्या होता है बेटा? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज विच? दिस एनोड इज द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड. इस पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है या रिडक्शन होता है? ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड. और ड्यूरिंग स्टेप 3 पूछा गया है. स्टेप 3 इज द कोटिंग ऑफ सिल्वर इज अप्लाइड टू द ऑब्जेक्ट इज स्टेप. अच्छा, फॉर स्टेप 3 के लिए बेटा हमें यहाँ पे सिल्वर इलेक्ट्रोड लेना पड़ेगा एट एनोड. ठीक है, एक्टिव सिल्वर इलेक्ट्रोड. और इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लेना पड़ेगा? सोडियम अर्जेंटोसियानाइड. इलेक्ट्रोलाइट तो इन्होंने पूछा नहीं है, इन्होंने बस ये पूछा है कि एनोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है. ठीक है, तो एनोड पे रिएक्शन क्या हो जाएगा ड्यूरिंग स्टेप 3? सिल्वर का ऑक्सीडेशन होगा. ठीक है, Ag solid gives Ag plus electron. ठीक है, this oxidation of silver will takes place at anode or the positive electrode. ठीक है, now identify the following. A bond formed between two atoms by sharing of a pair of electrons with both electrons being provided by the same atom, that is coordinate bond. ठीक है, bond formed between two atoms by sharing of a pair of electrons with both electrons being provided by a same atom and that is coordinate bond. ठीक है, a salt formed by the complete neutralization of an acid by a base is normal salt. Salt formed by complete neutralization of an acid by a base is normal salt. ठीक है, incomplete neutralization में acidic या basic salts बनते हैं. A reaction in which the hydrogen of an alkane is replaced by a halogen and that is substitution reaction. हाइड्रोजन को substitute कर रहा है कौन? हेलोजन. ठीक है, तो that is a substitution reaction. यहाँ पे बेटा आंसर हो जाएगा coordinate bond. यहाँ पे हो जाएगा नॉर्मल सॉल्ट एंड दिस आंसर इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. नेक्स्ट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूट्रल गैसियस एटम. सो आयनाइजेशन पोटेंशियल. ठीक है, आयनाइजेशन पोटेंशियल इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल गैसियस एटम एंड दैट इज कन्वर्टेड इनटू केटायन. ठीक है, आयनाइजेशन पोटेंशियल. A homogeneous mixture of two or more metals or a metal and a non-metal in definite proportion in their molten state is alloy. ठीक है, each constituent का बेनिफिट लेने के लिए हम क्या करते हैं? मोर देन 2 मेटल्स या नॉन मेटल्स को या मेटल और नॉन मेटल को इक्वल प्रोपोर्शन में इन देयर मोल्टन स्टेट मिक्स कर देते हैं एंड दैट होमोजीनियस मिक्सचर इज टर्म्ड एज एलॉय. ठीक है, एग्जाम्पल आप बता दो. एलॉय के एग्जाम्पल क्या है? ड्यूराल्यूमिन है. ठीक है, स्टेनलेस स्टील है, ब्रॉन्ज है, brass है and so on, solder है. Now complete the following by choosing the correct answers from the bracket. When dilute sulfuric acid reacts with zinc granules, the gas evolved is hydrogen or carbon dioxide, which can be tested using a burning splint. तो बेटा zinc granules means zinc atoms हैं इसमें. ठीक है, प्लस क्या हो गया? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4. तो आपको मिल जाएगा जिंक सल्फेट प्लस H2 गैस. ठीक है, जिंक विल रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड. वाई? बिकॉज जिंक इज मोर एक्टिव देन हाइड्रोजन. इट इज प्लेस्ड अबव हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज. ठीक है, अब ये बर्निंग स्प्लिंट से कैसे? हाइड्रोजन बर्न्स विद अ पॉप साउंड. ठीक है, तो पॉप साउंड से पता चल जाएगा डेट हाइड्रोजन इज प्रेजेंट. ठीक, सो यहाँ पे कौन सी गैस हो जाएगी? दिस हाइड्रोजन गैस इज करेक्ट. अ सोल्यूशन ऑफ कॉपर 2 सल्फेट इन सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन फॉर्म्स अ पेल ब्लू कलर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट. ओके, कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है पेल ब्लू कलर CuOH होल ट्वाइस. इन मीथेन ईच हाइड्रोजन एटम शेयर्स 1 इलेक्ट्रॉन विद द सेंट्रल कार्बन एटम टू कंप्लीट इट्स वैलेंस शेल. व्हाई? बिकॉज हाइड्रोजन इज शॉर्ट ऑफ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन एंड इट नीड्स टू कंप्लीट इट्स ड्यूप्लेट एंड इट शेयर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, ईच हाइड्रोजन एटम शेयर 1 इलेक्ट्रॉन विद द सेंट्रल कार्बन एटम टू कंप्लीट इट्स वैलेंस शेल. द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एलिमेंट X इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एलिमेंट Y. The oxidizing power of X is likely to be more than that of element Y. अच्छा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मीन्स द वैल्यू ऑफ एनर्जी रिलीज्ड. ठीक है, व्हेन एन एटम इज कन्वर्टेड इनटू इट्स एनाइन. तो
एनर्जी रिलीज यानी इलेक्ट्रॉन जब ऐड होता है आउटर मोस्ट शेल में तो एनर्जी जो रिलीज होती है डेट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. तो मोर द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज मोर इज द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ दैट एटम और एलिमेंट. ठीक है, मीन्स वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग पावर. ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ एक्स इज लाइकली टू बी मोर देन दैट ऑफ वाई. ठीक, द नेचुरली अकरिंग कंपाउंड ऑफ अ मेटल फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड इज कॉल्ड its ore, from which metal can be extracted conveniently and effectively. Okay, ore is the correct term. Now match column A with column B. अब column B में जो terms हैं वो किसी ना किसी तरह से related हैं to the terms that are given in column A. So aluminium का देख लो, aluminium is not a compound neither an ore. Yes, aluminium oxide का reduction होता है to aluminium by Hall-Herold's process. ठीक है, electrolytic reduction of aluminium oxide to aluminium is Hall-Herold's process. Now why aluminium is not reduced by using aluminium oxide is not reduced by using कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट. वाई? बिकॉज एल्यूमिनियम इज वन ऑफ द 5 एक्टिव मेटल्स. ठीक है, फर्स्ट 5 एक्टिव मेटल्स में से है दैट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट्स. वाई? बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन. ठीक है, वाई? बिकॉज दे आर वेरी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड हैव वेरी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, हेंस दे कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट्स. तो ये इलेक्ट्रोलिटिकली रिड्यूस होते हैं. ठीक है, सो हॉल-हेरोल्ड्स प्रोसेस इज द इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड टू एल्यूमिनियम. ठीक है, सो ए के लिए कौन सा ऑप्शन इज 3. ठीक है, नाउ सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड, मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इंडस्ट्रियल प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज कॉन्टैक्ट प्रोसेस. सो बी का बेटा विच वन इज करेक्ट ऑप्शन 4th. ठीक, कैल्सिनेशन. कैल्सिनेशन किसका करवाया जाता है बेटा? कार्बोनेट ओर का. ठीक है, ठीक है, मेटल कार्बोनेट से क्या मिल जाता है? मेटल ऑक्साइड. मेटल कार्बोनेट से मेटल ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज बीइंग रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. ठीक है, तो कन्वर्जन ऑफ कार्बोनेट और कन्वर्जन ऑफ मेटल कार्बोनेट टू मेटल ऑक्साइड थ्रू कैल्सिनेशन इज टेकिंग प्लेस थ्रू कैल्सिनेशन. तो यहाँ पे हो जाएगा दिस वन, सी का 2 हो जाएगा. ठीक है, नाउ कैल्शियम क्लोराइड इज एन इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड. कैल्शियम क्लोराइड इज इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इज अ कोवैलेंट कंपाउंड. है ना? नाउ व्हाई कैल्शियम क्लोराइड इज एन इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड? बिकॉज calcium has 2 electrons in its outermost shell that it can give and can acquire the electronic configuration of the nearest noble gas that is argon. ठीक है, okay, and chlorine is short of 1 electron in order to acquire the electronic configuration of the nearest noble gas that is argon. तो calcium बेटा, calcium provide 2 electrons, 1 to each chlorine atom and form calcium chloride that is CaCl2. ठीक है, तो दिस इज एन इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड. वाई? बिकॉज कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बीइंग टेकिंग प्लेस हियर एंड इन केस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड कार्बन इज शॉर्ट ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्डर टू अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन ऑफ नियॉन गैस एंड क्लोरीन इज शॉर्ट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो 4 क्लोरीन एटम्स रिएक्ट विद या फॉर्म बॉन्ड विद 1 कार्बन एटम. ठीक है, यहाँ पे शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स इज बीइंग टेकिंग प्लेस. 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स आर बीइंग फॉर्म्ड एंड दिस वन इज अ कोवेलेंट कंपाउंड. CCl4 इज द फॉर्मूला. ठीक है, ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड. Now in this question you have to give the IUPAC names of the organic compound. So for writing IUPAC name, first you have to check if any functional group is present. Yes, functional group is present and that is OH. ठीक है, और is there any double or triple bond? No, double or triple bond is not present. So parent hydrocarbon is alkane. तो general name हो जाएगा alkanol. ठीक है, यहाँ पे बेटा 3 कार्बन एटम्स हैं, 3 कार्बन एटम्स आर देयर, तो वर्ड रूट विल बी so propanol is the correct answer. ठीक है, propane 1 all और propanol. यहाँ पे बेटा OH ग्रुप इज अटैच टू द फर्स्ट कार्बन ओनली, सो यू नीड नॉट टू मेंशन द पोजीशन ऑफ द OH ग्रुप. ठीक है, सो प्रोपेनॉल विल बी द आंसर. ओके, नाउ दिस वन, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट? यहाँ पे आप देख लीजिए 1 डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट एंड नो फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट. ठीक है, यहाँ 1 डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट, सो यू हैव टू नंबर द कार्बन कंटेनिंग द डबल बॉन्ड एज द फर्स्ट कार्बन. 1 2 3 4 5 5 कार्बन्स आर देयर, नो सब्सटीट्यूएंट इज देयर. ठीक है, 5 carbons are included in the main carbon chain, hence the name is pentene or pent1ene or pentene. ठीक है, double bond is present at the first carbon only, so you need not to mention the position of double bond. So pentene. ठीक, now draw the structural diagram for the following compounds but2ine. So but is the word root, so first draw 4 carbon atom chain. ठीक है, main chain consists of 4 carbon atoms and but2ine. That means triple bond is present at Y and E लगा है बेटा, that means 1 triple bond is present. So और 2 आइन लगा है, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन दी है, डेट इज एट सेकंड कार्बन. सो सेकंड कार्बन पे आप ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, बाकी फिर हाइड्रोजन से फिल कर दो बाकी कार्बन की वैलेंसी. ठीक है, दिस कार्बन इज ओनली सिंगली बॉन्डेड, तो प्लेस 3 हाइड्रोजन एटम्स. हेयर ऑल्सो प्लेस 3 हाइड्रोजन एटम्स. इसकी ऑलरेडी टेट्रावैलेंसी फुलफिल है, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4. ठीक है, सो दिस वन इज but2ine. नाउ 1 ट्राइक्लोरोमीथेन, दैट मीन्स 3 हाइड्रोजन्स ऑफ मीथेन that is CH4 are replaced by 3 chlorine atoms. So this one is the 1 trichloromethane. Okay, now pentane 2.
Next is pentane 2 all. Pentane 2 all means alcoholic functional group, that is OH functional group is present, and that is present at the second carbon. Now pent word root is pent, that means it contain 5 carbon atoms in the main chain. So draw 5 carbon atoms, 1 2 3 4 and 5. ठीक है. Now OH group is present at the second carbon, तो आप second carbon पे OH group लगा दो. Now fulfill all the valencies of carbon. ठीक है, with hydrogen. Now this one is pentane 2 all. ठीक है.